Hello students, how are you? I hope you all are good and at home and you are safe. As you know, summers are there and the scorching heat is outside. You are requested not to go outside without any reason. Stay home and be safe while drinking lot of water. बेटे अच्छे से पानी पियो, बहुत गर्मी है बाहर. डोंट गो आउटसाइड. ओके, यस, वेरी गुड. I hope your PT1 has done and you all did good. Basically the result is good. You did well, you all did well. As you at home still you prepare yourself for the test by yourself. Good, I'm happy, but still you need to do a lot of work on it, but it's okay. Now holidays are there, not holidays we can say. Now you can do your more efforts for the things. Okay, now we are going to start up with the new chapter. Now coming to the point, let's start with the new chapter, that is Robinson Crusoe discovers a footprint. This chapter of unit 3, the chapter is Robinson Crusoe on page number 48. I will let you what exactly the chapter is, a little brief summary. Robinson Crusoe is a man. He was going towards a boat and his boat was destroyed by the sea, and he has to stay on that particular island for many days. But you know what? He saw a footprint. That is not a footprint just like we are having footprints, a little one, a big footprint. He was afraid of it and he ran away from that particular part, and he was there. He didn't turn up over there for many long. Though his boat was there, he had to go, but he was not come because he was frightened. डर गया था वो. उसने एक बहुत बड़ा footprint देख लिया and he never saw that footprint before. Obviously जब कोई ऐसी चीज़ देख लेगा तो डर जाएगा. वो बिल्कुल डर गया और वो वहीं कितने दिन निकला नहीं. वो भागता गया. उसको था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और मतलब डर गए. हम लोग नहीं डर जाते कई बार, कई लोग अंधेरे से डरते हैं और भागते भी लगता है तो पीछे को यार दैट वे. डर गया तो काफ़ी देर तक वहीं रहा, छुपा रहा जंगलों में कि कोई पता नहीं कौन है वो मार देगा. बट कुछ नहीं था, बट वहाँ उसका एक वहम था वीकेंड से. और उसके बाद थोड़ी दिन बाद वो ठीक हो गया. जब वो गया तो वहाँ पे कुछ नहीं था. जो आइलैंड था जहाँ पे वो मतलब जिसको हम कहते हैं यहाँ पे सी ऑन द 3 साइड्स होता है और छोटा सा एक आइलैंड बना होता है, वहाँ पे वो खाली था और वहाँ कोई नहीं रहता था. तो कोई होता है ना, जैसे हम ऐसी कोई जगह पे चले जाते हैं, बहुत दिन बाद कोई नहीं हो उसमें. चलो हम एग्जांपल स्टोर रूम में, अपने घर का स्टोर रूम हो, बहुत देर तक बंद पड़ा रहो, वो बच्चे डर जाते हैं. अभी बहुत डर जाता है. सबका नेचर सेम नहीं होता. डरता हो ही. दिस इज़ जस्ट ओवरव्यू. I hope you all have seen the video of the chapter. Now coming to the page number 52. Okay, that is new words. You might have done it in the notebooks. I gave it to you. Let's read question answer. You might have done it. Now choose a correct answer. If you have read the chapter thoroughly, you might be knowing what are the answers of the things. Okay, questions. First, choose a correct answer. Robinson ran back to his home as fast he could because he बहुत तेज़ी से भागा अपने घर की तरफ, क्योंकि जितनी तेज़ भाग सकता था. रेस लगा रहा था. ही वॉज अफ्रेड, डरा हुआ था, या वो उसको घर जाने की जल्दी थी.
Yes, he was afraid. वो डरा हुआ था. He could not sleep because there was an animal outside his cave. उसकी केव के बाहर, गुफा के बाहर कोई एनिमल था. He thought savages had come from the mainland. Savages कौन होते हैं? जो वहाँ पे वाइल्ड पीपल, जो प्रिमिटिव वो उस जगह पे रहते हैं, वाइल्ड पीपल. ठीक है. और his bed was uncomfortable. No, he thought savages had come from the mainland. Okay, good. Now third part. Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? उसको क्यों लगा इसका footprint नहीं है? It did not look like a human footprint, क्योंकि human print की तरफ नहीं था. It looked smaller than his, उससे छोटा लग रहा था. He had not come to this part of the beach in a long time. वो वहाँ पे नहीं आया था क्योंकि वो धारण नहीं था. He had not come to this, वो नहीं आया था यहाँ पे, तो उसको नहीं पता था कि ये किस उसका फुटप्रिंट नहीं है. वो आया नहीं था, उसको तो पता था कि मैं नहीं आया तो बड़ा फुटप्रिंट तो मेरा नहीं हो सकता. ठीक है. वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूजो? बोट में था, टाउन में था, अलोन ऑन आइलैंड, आइलैंड पे अकेला था, कि ऑन एन एरोप्लेन? हाँ जी, येस, अलोन ऑन द आइलैंड. यू नीड टू टिक द आंसर्स. ओके. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, लेट्स टॉक. You have to do yourself. Do yourself means because everybody has its own experiences, so do yourself. How would you feel if you saw unknown footprints outside your front door? कैसा फील होगा अगर आपके घर के बाहर जो फ्रंट वाला दरवाज़ा है, जो वहाँ पे आपको फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं? कोई बड़े डर जाएंगे, कुछ हंसेंगे, कुछ उसको लाइटली चलता है भाई, है ना. तो इट्स एवरीबडी हैज़ हिज ओन ओपिनियन, सो डू इट योर सेल्फ. If you were alone at home and suddenly someone knocked at your door, what would you do? तुम घर पे अकेले हो और अचानक से कोई दरवाज़ा खटखटा देता है, तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? अगर तुम घर पे हो तो मेरे हिसाब से आप दरवाज़ा नहीं खोलोगे, किसी को भी अंदर से पूछोगे कौन है ना. तो फिर देखोगे अगर तो आपको कोई जानने पहचानने वाला है तो पूछोगे क्या काम है, कैसे है जो, तो फिर आप खोलोगे, नहीं तो नहीं, ज़रूरत ही नहीं है. Okay, good. Let's write next part. The words in the sentences are jumbled है, और you have to do it in a meaningful manner. First one is done. Alone was not Robinson an island on. Robinson was not alone on an island. Was island inhabited. The island was inhabited, मतलब वहाँ कोई नहीं रहता था. Coming to the next. Footprints to someone this belonged. This footprint belonged to someone. This footprint belonged to someone. Do yourself. करा हुआ बेटे, पर तुम लोग देखोगे नहीं, अपने आप करोगे एक बार. ठीक है. ओके, गुड बच्चे. Fill in the blanks with correct word. These are the words. You need to fill which one is correct and which one will come over there. Our first one is I was frightened dash curious. मुझे डर लग रहा था, डरा हुआ था, बट बट आएगा. बट क्यूरियस होता है टू नो समथिंग, जानने की इच्छा थी कि क्या है, पर डरा तो मैं पक्का हुआ था, पर आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि क्या है. नेक्स्ट, आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच. मैंने डिसाइड करा बीच पर जाऊँगा. डैश आई वेंट अलॉन्ग द वाटर एज. तो मैं वाटर एज होता है, वाटर पानी का ऐसे जो साइड पे होता है, ऐसे उसके साइड पे चलता गया. आई रैन एज फास्ट आई कुड डैश आई वॉज फ्राइटेंड. मैं जितना तेज़ भाग सकता था भागा. डरा हुआ था क्योंकि मैं डरा हुआ था. गुड. आई वॉज वेरी टायर्ड. मैं बहुत थका हुआ था. डैश कन्फ्यूज, और कन्फ्यूज था, और मतलब एंड कन्फ्यूज था. ओके, गॉट इट क्लियर बच्चे? ओके. Write a story on strange footprints. If you want to write, you can write. If you don't, then it's up to you. But I'm not giving you have to do, but it's better if you do yourself. Your writing part would be strong, na? ठीक है? Okay. Now use joining words given below and join the sentences in the column A or B. Joining words हैं, ठीक है? I can sing well. फिर उसका क्या आएगा? बट यस, आई कैन डांस एट ऑल. मैं डांस नहीं कर सकता. गा तो अच्छा सकता हूँ पर डांस नहीं कर सकता. शी वोर अ रेनकोट. उसने रेनकोट पहन रखा है. क्यों?
क्यों पहन रखा है? येस, इट वॉज रेनिंग। कैसे आएगा? बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बट आई कैंट डांस। वी मे गो टू शिमला, वी मे गो टू दार्जिलिंग। शिमला जाएंगे या दार्जिलिंग? और शिमला, और यहाँ शिमला या दार्जिलिंग। ही वॉन्टेड अ बुक फॉर हिज बर्थडे, उसको अपने बर्थडे के लिए बुक चाहिए। ही वॉन्टेड अ बुक फॉर हिज बर्थडे एंड फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे। और फुटबॉल भी चाहिए, बुक भी चाहिए और फुटबॉल भी चाहिए। ही मिस द स्कूल बस, उसकी स्कूल बस मिस होगी। क्यों हो गई? स्कूल बस क्यों होगी? तो यहाँ पे क्या आएगा? क्यों का मतलब बिकॉज। ही वॉज लेट टू स्कूल, यहाँ पे आएगा बिकॉज। यू डू योर सेल्फ, मैंने थोड़ा हिंट दे दी बेटे। अब आप बड़े हो गए, थोड़ा थोड़ा खुद से करोगे तो अच्छा रहेगा। मेरे को अच्छा लगता है अगर बच्चा खुद से करे ना। आई रोट द लेटर डैश आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, लिख तो ली, क्या हुआ? फॉरगेट, भूल गया, बट ओके गुड, ये दिस इज द, आपको ऐसे लिखना है नीचे, ओके, सुंदर हैंड राइटिंग में। गुड, फन टाइम। लुक एट द फुटप्रिंट, ये फुटप्रिंट देखो, दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ फर्स्ट मैन ऑन द मून, हिज नेम वॉज। किसका ये फुटप्रिंट? उसने कहा, पहले हिंट दे दिया उसने, फर्स्ट मैन, मून पर फर्स्ट मैन गया था, कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वेरी गुड, गुड बच्चे। लेट्स क्रिएट ए पिरामिड, ये तुम बनाना, बड़ा मज़ा आएगा। वैसे मैंने बना रखा है, बट तुम खुद बनाओगे तो मज़ा आएगा। ओके ओके, नाउ लेट्स वर्क इन पेयर्स। लुक एट द फुटप्रिंट द मड, ये देख लेना, लीव इट, इसको छोड़ो। तो अभी तुम लोग क्या करना है, ये सब कर सुंदर हैंडराइटिंग में करना है, गड़बड़ नहीं करना, अच्छे से करना है। आई नो यू पीपल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, नाइस, बहुत अच्छे बच्चे हो सब लोग, तो अच्छे से वर्क करना है। अब अगली वीडियो के साथ आएंगे, उससे पहले प्रॉमिस कीजिए अब घर से बाहर नहीं निकलेंगे जब बिना बात के, गर्मी बहुत है, इट्स टू हॉट आउटसाइड, स्टे होम, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एंड हेल्प योर मदर और फादर इन देयर डेली चोर्स, ठीक है ना, उनके घर के डेली काम में उनका हेल्प ही करो। ओके, बाय बाय।